All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Agam. Good morning. Morning, Anjali. Hi, Tanvi. Hi, Samit. Sankalp B. Good morning. Hi, Avni. Hi, Devanshi. All right. लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन ना दिए थे मैंने आप लोगों को करने के लिए. आई होप आप अपना एटॉमिक का टास्क कंप्लीट कर रहे हो. हाँ, मैं अनम्यूट करता हूँ थोड़ी सी देर में. लेट अदर्स ज्वाइन इन. लास्ट क्लास में एक्चुअली मैंने आप लोगों को गैसेस के बारे में एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करा था. राइट. व्हाट वाज दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT. राइट नाउ उस इक्वेशन को मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूं अभी आप लोगों के साथ में, बिकॉज दैट इक्वेशन गेट्स एक्सप्लोर्ड अ लॉट इन गैसियस स्टेट चैप्टर इटसेल्फ. उस इक्वेशन का मैं एक रिजल्ट जो है दैट अंडर STP कंडीशंस 1 liter of gas, oh sorry, 1 mole of gas will occupy 22.7 liters, या फिर under NTP conditions it will occupy 1 mole will occupy 22.4 liters of volume. बस इतना लेते हुए चल रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई वुड request you to remember what STP and NTP conditions were. Do you remember what STP condition was? 1 bar pressure and 0 degree centigrade temperature. And NTP was 1 atm pressure and 0 degree centigrade temperature. Bar, atm, these are units of pressure only. They are very close to each other, but thoda sa difference hai. There is a bit difference between the two. ठीक है. So let me start off with a question based on this diagram that you have. ये diagram को मैंने थोड़ा सा और elaborate कर लिया है. I hope ये diagram आप लोगों को use करना आ गया है अच्छे से. खैर और questions मिलेंगे अभी आपको, तो practice होती रहेगी. So let me put across a question. The question is in this way. Determine the molecular formula of sulfur vapor if it's found to occupy 44.8 liters volume at NTP and weighs 512 grams. All right. Question समझ में आया? हाँ. चैट पर आंसर देते जाओ. Determine the molecular formula of sulfur vapor if it's found to occupy 44.8 liters volume at NTP and weighs 512 grams.
राइट. सो कैसे करना रहेगा ये क्वेश्चन? लाइक यू विल look at the diagram and figure out what are the things that are given, what are the things that are asked, right? So इसमें आपको आप फिगर आउट करोगे तो वॉल्यूम दिया हुआ है एंड मास दिया हुआ है सब्सटेंस का, राइट? ये दोनों चीजें दी हुई है. व्हाट इज इट दैट इज बीइंग आस्क्ड? फॉर्मूला पूछा है, बट दैट फॉर्मूला वुड रिलेट टू व्हाट? मोलिकुलर वेट, right? If I'm able to determine the molecular weight, then I should be able to tell what should be the answer, है ना? तो इस तरीके से आप ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो. राइट. सो हाउ डू वी गो अबाउट आंसरिंग इट? यस, काफी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दे दिया. द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, S8. कैसे प्रोसीड करा उन्होंने? सो मास दिया हुआ है 512 ग्राम्स, राइट? मोल्स कितने हो जाएंगे? 512 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वॉल्यूम एट NTP कितना हो जाएगा? राइट, विल यूज दिस रिलेशनशिप, मोल्स इनटू 22.4. ठीक है, मैंने अभी NTP कंडीशन बोला है तो 22.4. सो 512 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल्स हो गए, इनटू 22.4, एंड दिस इज गिवन टू यू एज 44.8 लीटर्स. तो यहाँ से यू विल फिगर आउट दैट द मॉलिक्यूलर वेट इज 256. Right, now you look at the options which matches with 256 and आप आंसर कर दोगे. ठीक है, clear enough? Yes, sir. So I have a question, sir. हाँ बोलो. So मैंने disconnect हो गया, sir. Can you just scroll up? I just want to see what you have done, sir. बस इतना सही. ये जो लास्ट क्लास में अपन ने डायग्राम पढ़ा था, इसको मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है. लाइक जस्ट मोल्स के. Okay, sir. So can you just copy it? Give me 10 seconds. स्क्रीनशॉट ले लो ना एक. हो गया sir. Sir, हाँ. sir, your since mass is given and you've calculated till here, then can we do molecular weight upon atomic weight of one atom of sulfur? It will give us number of atoms of sulfur. हाँ हाँ. सो आप कोई ऑल्टरनेट तरीका प्रपोज कर रहे हो? Yes, sir. उसमें आप कहना चाह रहे हो कि मैं मास जो दिया हुआ है उससे क्या करूं? Sir, no, exactly what you've done till here, and then beyond that, we can if we've got molecular weight as 256, so we divide it by atomic weight of sulfur, which will give us number of atoms. हाँ हाँ हाँ. सो इसके बाद में मैंने बोला कि आप हर एक का ऑप्शन का मॉलिक्यूलर वेट चेक करके Yes, sir, that becomes too long. That's why. ऐसा नहीं है यार, इतना तो लॉन्ग नहीं बनता. मतलब थोड़ा सा. Yes, sir, but it's unnecessary work. हाँ ठीक है. तो you can, what you can do is saying that let, by looking at the options, you can start by saying that let the vapor formula be S subscript X, है ना? So now 32 times X is 256, and यहाँ से then you can comment that X is 8. Yes, sir. Yes. All right. A quick question, similar lines पर. Determine the mass of say 33.6 liters of H2O at NTP. क्या रहेगा आंसर? 27 grams. और बताओ. Sir, is water a gas at NTP? कौन था ये? Moksh. चलो, कोई तो है जो कि दिमाग लगा रहा है. So I received so many answers saying 27 grams, and that will be absolutely incorrect.
क्यों? फटाफट फटाफट फॉर्मूला सीखा है, अप्लाई करना शुरू करना है। ये तो देखा ही नहीं आपने कि द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। मैंने लिखा भी है ऊपर, राइट? ये किसके लिए है? गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है कि Here एनटीपी कंडीशन देख लिया तो अज्यूम ही कर लिया कि गैस है, राइट? इनफैक्ट is the density formula, right? हाँ, 273 Kelvin and 1 atm implies H2O is in liquid or solid form, ठीक है, गैस फॉर्म में नहीं है। नाउ अगर लेट्स से इफ आई अज्यूम density of H2O to be approximately 1 gram per ml, then mass of H2O will be equal to volume times density, and that should fetch me the answer approximately 33.6 कितना यूनिट्स? 33.6 into 10 raised to minus 3. हाँ, मतलब आपकी इच्छा है मुझे if I want the answer in the units of kg, then what will be the answer? आपको इतना इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए, 33.6 kg per meter cube. राइट? 33.6 kg, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे ये आपकी इच्छा है। लाइक वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में दिया हुआ है, तो अगर आप उसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी से तो आंसर आपका ग्राम्स में आएगा, एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट बैक टू किलोग्राम्स, ठीक है। आई होप वो यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन सबको आता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नहीं आता है तो थोड़ा स्ट्रगल करो, बट फिगर इट आउट। हम लोग पिछले चैप्टर में भी यूनिट्स काफ़ी नोटिस करे हैं, एंड आगे आने वाले हर चैप्टर में यूनिट्स का रोल रहेगा ही रहेगा। ओके, नाउ एक छोटा सा और ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, एंड उसके लिए एक नोट साथ में रखना। जो हमने ऊपर रिलेशनशिप पढ़ा था, द अबव रिलेशनशिप फॉर आइडियल गैसेस, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा था? दैट Vm, व्हाट डज Vm रिप्रेजेंट? मोलर वॉल्यूम, ठीक है। एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम, एक मोल यहाँ पर गैस है, मोलर वॉल्यूम इज 22.7 लीटर्स एट STP. सो द अबव रिलेशन, और इनफैक्ट यहाँ पर मैंने इसको बिलो कर दिया, द बिलो रिलेशनशिप फॉर आइडियल गैसेस is also valid for a mixture of ideal gases, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गैस के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो, आप पूरे के पूरे मिक्सचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट यू नो अ मिक्सचर ऑफ N2 and O2 occupies a volume of say 33.6 liters at NTP, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको you can read that the moles of mixture, right, that is the moles of N2 gas plus moles of O2 gas. You might not know individually कितना कितना है, but the total moles would be equal to 33.6 upon 22.4, that is 1.5, ठीक है। ये आप कंक्लूड कर सकते हो। हाँ, of course assuming that gases are ideal only, ठीक है। अब of course मैंने आपको बताया नहीं आइडियल का मतलब क्या होता है, बट आप अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द वर्ड गैस ओनली, आइडियल रियल वो बाद में बताएंगे, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई?
Yes, sir. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन क्विकली ट्राई करते हैं. इसमें मल्टीपल कनेक्शंस बिठाने पड़ेंगे. सो लेट्स सी. A 53-gram mixture of methane and ethane occupies a volume of 44.8 liters at NTP. ठीक है. Determine the total number of carbon atoms in the sample. शुरू हो जाओ. नहीं शर्विन, not correct. हाँ गौरव and क्षितिज correct. नहीं ऋषभ. अनव like हाँ ठीक है, करेक्ट है. सिद्धांत अलका नहीं, नॉट करेक्ट. सोहम शौनक अश्विन करेक्ट. नहीं अनुश्री. हाँ तनीश आपका करेक्ट है. नहीं अर्श, नॉट करेक्ट. चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर एंड दोस्त जिनको लाइक स्टार्ट करने का भी नहीं मौका मिल रहा है. ठीक है. एंड अंडरस्टैंड, मतलब ये कैसा क्वेश्चन हो गया दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच इजंट ऐसे सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया. थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है. एंड छोटा सा हिंट दूंगा मैं. छोटा सा हिंट क्या है दैट let the moles of CH4 be X and say let the moles of C2H6 be Y. ठीक है. शर्विन तुम्हारा आंसर स्टार्टिंग में आई थिंक गलत इसलिए आया होगा बिकॉज तुमने ये 44.8 लीटर पढ़ के ये सोच लिया होगा कि अच्छा मिक्सचर का वॉल्यूम 2 मोल होंगे और देन उसके बाद में आपने दोनों का एक मोल मान लिया होगा. दैट वुड बी एन अजम्पशन, नो. तो वो गड़बड़ कर गया आपके लिए. दिस इज द हिंट. लेट द मोल्स ऑफ CH4 be X, let the moles of C2H6 be Y. And based on this now you will have to look at the data and see if you can get X and Y. हाँ, मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ. लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैं चैट पे डाल देता हूँ. आई विल नॉट से इट आउट लाउड, तो जिनको देखना है वो देख सकते हैं.
Sir, हाँ sir, I got 3.456, sir. Is that also correct? नहीं नहीं 3.5 Na ही आ जाता है. Okay, sir. ठीक है. All right. Now let me help understand कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था. ठीक है. सो यहाँ पर सर एक्स वाई के जगह एक्स और 2 - x लेंगे तो जल्दी आ जाएगा. दैट्स ओके. मतलब यहाँ पर जैसे आई विल स्टार्ट यूजिंग द डेटा. ये चीज है भाई. यहाँ पर मुझे टोटल मोल्स विल बी कैसा रहेगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर अपॉन 22.4. ठीक है. सो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, x प्लस वाई इज 44.8 अपॉन 22.4. तो ये मेरा पहला इक्वेशन रहेगा. ठीक है. दूसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अबाउट द मास. राइट. सो टोटल मास ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ CH4 प्लस मास ऑफ C2H6. राइट. एंड मास इंडिविजुअल गैस का कैसा रहेगा, मोल्स ऑफ CH4 इनटू मोलर वेट ऑफ CH4, है ना, मोल्स ऑफ C2H6 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6. ऐसे लिख सकता हूँ मैं. सो 56 विल बी इक्वल टू, अब CH4 53 सर. सॉरी 53 हमने कैसा लिखा हुआ है, 16 टाइम्स x प्लस 30 टाइम्स. 30 times. सो आपने दो इक्वेशन बना ली. यहाँ से आप x एंड y सॉल्व कर लोगे. सो फ्रॉम 1 and 2 यू विल गेट x एंड y. कितना आ रहा है, you will get 0.5 आता है ना. 0.5 and X 1.5. is 0.5. x is Y 0.5 is and y is 1.5. Y is 1.5. right. So based on this, अब आपको ये आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है कि व्हाट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है. तो अब इसके बाद में लाइक थोड़ा लॉजिक ही लगेगा. CH4 Y plus X. के अंदर कितना कार्बन एटम है, सो यू कैन सी दैट वन मॉलिक्यूल हैज वन कार्बन एटम. राइट. सो इफ आई हैव x यानी कि 0.5 Na मॉलिक्यूल, तो कितना कार्बन एटम आएगा वो आप निकाल सकते हो. सिमिलरली C2H6 के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना कार्बन एटम है, 2. एंड 1.5 मोल्स मतलब 1.5 Na मॉलिक्यूल रहेंगे तो कितना कार्बन एटम आएगा. अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो. सो दोनों को आप ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल कार्बन एटम्स ये 0.5 Na यहाँ से और यहाँ से 3 Na, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 Na. दैट्स इट. क्लियर है. Yes, sir. ठीक है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन. ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर एबल टू डू इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एक साथ कनेक्ट हुए ना. अभी तक तो मैंने आपको होमवर्क में कैसे सिंपल क्वेश्चंस ही दिए थे कि यू नो ये डायग्राम देख लो और इसमें से कुछ दिया होगा, कुछ बताना होगा, तो यू जस्ट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नाउ दिस क्वेश्चन वाज समथिंग much more difficult as compared to the earlier questions that we were doing. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस को दोबारा घर जाके खुद से जरूर सॉल्व करना. ठीक है. अगर क्लास में आप नहीं कर पाए हो, इट्स कम्प्लीटली ओके. लाइक घर जाके क्या, घर पे ही हो आप, बट आफ्टर क्लास डेफिनेटली पुट सम एफर्ट इनटू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. ठीक है. Sir, can you go up a bit? I have to take a screenshot. ठीक है. Sir, all the questions. Only the question. क्वेश्चन तो इतनी देर से था ही सही ना. ऑलराइट. Yes, sir. अच्छा,
तो गैसेस के बारे में एक दो क्विक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, क्विक फॉर्मूला वैसे तो हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे ही सही, बट इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का डिस्कशन हो रहा है। सो PV इज इक्वल टू nRT से स्टार्ट करते हैं। ये आइडियल गैस इक्वेशन था। व्हाट वाज मोल्स? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूँ। ये मॉलिक्यूलर वेट को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूँ और वॉल्यूम को राइट हैंड साइड पर। नाउ व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम? Density. Density. So I can write the relationship relating the density of gases. Okay. It just works for gases. Don't apply it for solids or liquids at any cost. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? This is a formula that we have come up with for density of gases. Right? D stands for density of gas. P stands for the pressure of gas. M stands for the molecular weight of gas. ठीक है, R is the gas constant and T is temperature. ठीक है। नाउ अब नोटिस करना, इससे मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, बट इस चैप्टर में, बुकलेट में, क्वेश्चंस में काफ़ी जगह काम आएगा। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई इट इज देयर इन ICSE का टेक्स्ट बुक्स, एंड इनफैक्ट ये बुकलेट में भी है ही सही गड़बड़, दैट जब ऐसे वो याद है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ाते हैं, हाँ सर। यस सर। तो उसमें पता नहीं फॉर व्हाट रीजन, लाइक दे गिव वेपर डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक C6H12। वो 6 वो गैस नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ गैस एट whatever normal room temperature pressure conditions. तो उसके लिए वेपर डेंसिटी जैसा टर्म डिफाइन ही नहीं होना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, बट लाइक ब्लाइंडली वो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, एंड काफी सारे टेक्स्ट बुक्स में हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। सो आई जस्ट वांट यू टू बी अवेयर अबाउट इट, ऑल्दो वी आल्सो विल बी यूजिंग इट ब्लाइंडली, बिकॉज वैसे कुछ क्वेश्चन बुकलेट में रहेंगे, ठीक है। So why are we using? सर मेन एग्जाम में क्या करना है फिर? हाँ, नहीं मैं आपको समझाता हूँ, वापस से ध्यान से सुनना है यहाँ पर। सी जो वेपर डेंसिटी डिफाइन करा जा रहा है, ये वेपर डेंसिटी कैसा डिफाइन करा जा रहा है, इसका पहले डेफिनेशन नोटिस करना। सो वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज molecular weight, or in fact let me not start with molecular weight, let me start with the fundamental definition. The fundamental definition is density of gas at given temperature pressure condition upon density of hydrogen gas, ठीक है, at same temperature pressure condition. This is the underlying basic definition of vapor density, जो fundamental definition है। अब in most of the cases reference gas को H2 गैस ले लेते हैं, तो एक simplified formula आ जाता है। However, this is the starting step. अब अभी just ऊपर मैंने आपको density का formula करवाया है, it is PM/RT, है ना, ये ऊपर अभी जस्ट लिखा है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। सो यहाँ पर सिंस बोथ द गैस एंड द रेफरेंस गैस
are at the same pressure temperature conditions, I can cancel out the P, R and T. Yes. Right? And the formula simplifies to vapor density of a gas is molecular weight of gas upon molecular weight of रेफरेंस गैस. ठीक है, तो बुकलेट में आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जहां पर दे हैव changed the reference gas rather than taking hydrogen. They have said that falana falana is a reference gas. So this is the formula that you'll have to use, and ये formula ये सब applicable तभी है when species is in gaseous form. ठीक है, this is not something which should be applied for solids or liquids. अब इसके बाद में कैसा है, if nothing is mentioned, तो जैसे मैंने आपको बताया इन जनरल रेफरेंस गैस इज हाइड्रोजन गैस. तो इसका एक कॉमन यूज्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस is equal to molecular weight of that gas upon 2. Okay, this is the in general used formula, and the formula has been abused in the sense rather than using it for gas, it has been now used for any substance in general. In textbooks, in questions that you are going to solve, उसमें ऐसे ही use कर लेंगे. ठीक है, so rather than putting a note, I'll put a disclaimer over here. The formula has been incorrectly used in many questions in fact has been incorrectly used for any general substance which might not be gas. ठीक है, बट मिलेंगे वैसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. ठीक है, क्लियर है ये डेंसिटी ऑफ गैस एंड वेपर डेंसिटी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इस पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों के लिए, वो एक बड़े क्वेश्चन का ही पार्ट रहेगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता रहूंगा, एक कोई बड़ा सा क्वेश्चन होगा उसमें एक जगह ही डेटा पॉइंट रहेगा. ओके, सो डेफिनेशंस हो गई, मास मोल रिलेशनशिप हो गए, एंड गैसेस पर कैसे मास मोल रिलेशनशिप एंड मास मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज करना रहेगा वो हो गया. अब एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस करता हूं, विच इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ठीक है, दिस इज अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पर स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं बनते, बट इट बिकम्स पार्ट ऑफ अ लार्जर क्वेश्चन. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू टू रिमेंबर. एंड हैविंग सेड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, देयर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट. ठीक है, नोटिस करना. And this is also a problem which I have seen in many books, in many references. मैं आपको समझाऊंगा प्रॉब्लम क्या है. So there is a percentage composition by mass, and there is a percentage composition by number, or you can say by moles. ये दो टाइप के परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं इन दिस चैप्टर.
नाउ ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ना, लीव सम स्पेस एज यू आर मेकिंग नोट्स. आई विल मेक make you write an important point over here. Now पहले मैं समझा देता हूँ कि ये होते क्या है, फिर मैं वो important point भी डिस्कस करूँगा आपके साथ में. So let's say through an example मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. Say you have a CO2 molecule, carbon dioxide का molecule, and if I ask you this question, that what is the percentage of carbon by mass in CO2 molecule, तो आपका क्या आंसर रहेगा? 12/44 into 100. 12/44. Right. So you will write the answer 12/44 into 100% and come up with the calculation. कैसे लिखा गया ये 12/44? इसके पीछे का फॉर्मूला क्या था? Mass of carbon by Mass of a carbon by molecule. total mass into total mass of the 100%. molecule into 100. राइट. सो मैं उसको एक इंग्लिश के फॉर्म में डिस्क्राइब कर देता हूँ फॉर्मूला को. सो कैसा रहता है ये फॉर्मूला, यहाँ पे नोटिस करना. परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कोई एक एलिमेंट होगा. सो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड. एंड कौन सा परसेंटेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? परसेंटेज बाय मास. तो इसका फॉर्मूला कैसा बनता है? द फॉर्मूला इज समथिंग ऑफ दिस नेचर. कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट in molecular weight of the substance of the compound upon molecular weight of the compound into 100%. So यहाँ पर molecular weight of CO2 कितना था? 44, right? That is what goes in the denominator. And कितना contribution carbon का था? एक ही atom 12 was that contribution in the molecular weight. So based upon that, you come up with this answer of percentage by mass. Now, इसी question में if I would have asked you percentage of carbon and I asked you by number or by moles, तो आपका आंसर कैसा रहता? 1/3 into 1/3 1/3 into 100%, right? So यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा अगेन कैसे ये लिखा जा रहा है. सो इफ आई वाज टू काउंट इन टर्म्स ऑफ द एटम्स, तो ये कैलकुलेशन मुझे समझ में आ जाएगी. दैट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, and this is by moles or you can say by number. It will be number of atoms of the element in the molecule, number of atoms of element in the molecule upon what should I use? Total number of atoms. Number of molecules. Atomicity. Atomicity word भी बोल सकते हैं, है ना? Yes, sir. Total number of atoms in the molecule into 100%, of course. Now, this is something which is a distinction between calculation of percentage by mass and percentage by moles. होता क्या है, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, that जब questions
आते हैं आपके सामने, एंड आई थिंक some students who would have already done this chapter and tried questions of this subtopic, so they would see or they would find कि questions में percentage composition पूछ लेते हैं या बता देते हैं, but ये specify ही नहीं करते कि whether it is by mass or whether it is by moles, and that leads to confusion. ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन आपको आने लगेगा जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा. एंड नोटिस करना, ठीक है, समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड, समथिंग दैट आई हैव फिगर्ड आउट बाय लुकिंग एट एंड सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अगर स्पेसिफाई नहीं करा है, ठीक है, ध्यान से सुनना यहाँ पर, अगर स्पेसिफाई नहीं करा जाता है क्वेश्चन में, तो व्हाट इज इट दैट यू शुड assume? So Mass. it depends upon the type of question actually. मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर elaborate करूँगा. So if the question is asking about, say, composition of elements in a compound, percentage composition of element इन कंपाउंड, अगर ऐसा क्वेश्चन है और नहीं स्पेसिफाई करा है तो बाय मास ही लेके चलना. या फिर क्वेश्चन रहेंगे रिगार्डिंग परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है. परसेंटेज प्योरिटी कैसा होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा. इफ यू हैव अ से सैंपल ऑफ समथिंग, तो उसमें समथिंग के अलावा कुछ इम्प्योरिटी भी हो सकती है, एंड देन प्योरिटी के बारे में बात करी जाएगी. सो ऑल दोज क्वेश्चंस व्हिच विल बी देयर, ठीक है, उनमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया जाएगा या पूछा जाएगा, वो सब बाय मास ही रहेगा, ठीक है. नाउ अब नोटिस करना, इन क्वेश्चंस which are related to percentage composition of gas mixture, ठीक है. आगे आएंगे, मैं कराऊंगा that say air is a mixture of 80% nitrogen and 20% oxygen, ठीक है. अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो that won't be composition by mass, that would be composition by moles, ठीक है. इन जनरल ऐसा ही रहेगा. एज वेल एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स जब मैं बात करूंगा, ठीक है. ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने धीरे धीरे आगे रिवील करता जाऊंगा. So I'll also give you some questions exploring, that फलाना sample of say chlorine है, उसमें से कुछ क्लोरीन 35 है, कुछ क्लोरीन 37 है, right? In fact आपने शायद पढ़ा भी होगा जूनियर क्लासेस में. Yes. क्लोरीन 35 is 75% and 37 is 20. हाँ, तो वो जो परसेंटेज होता है ना, वो बाय मास नहीं होता, वो बाय मोल्स होता है, ठीक है. Now ideally a question should always clarify that the percentage composition that is being given or that is being asked, is that by mass or is that by moles. But typically ये information questions में देते ही नहीं है. पता नहीं क्यों नहीं देते. Maybe it is because these are like too obvious questions for a paper setter. They are like कि इतना तो बच्चों को पता होगा इसी. So in order to help you with that, keep this thing in mind. In future जब मैं आपसे questions करवाता जाऊंगा, okay, I will also not be able to every time specify कि by mass है या by moles है composition, ठीक है. उसके लिए ये hint आपके सामने रहेगा that if a question is asking this kind of data, then take it to be by mass. If the question is exploring this kind of data, take it to be by moles, ठीक है. हाँ, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है. मतलब आप ये चीज मान के चलो कि इवन
in the actual exam also there are sometimes questions जिसमें like एक बड़े question में like एक पूरा बड़ा सा question होगा जिसमें कहीं पर छोटा सा ऐसे composition का data दिया होगा, ठीक है, and इसमें भी हो सकता है that exam में they don't specify that which kind of percentage composition is, so you rely upon this that अगर ऐसे किसी एलिमेंट का कंपाउंड में कंपोजिशन दिया जा रहा है या कोई ऐसे मिक्सचर है, यू नो सम सैंपल विद प्योरिटी इम्प्योरिटी और नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, तो जैसे होगा इन फ्यूचर में फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इलेक्ट्रोलिसिस का कोई क्वेश्चन करोगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन में ऐसे करते हैं ना, रिफाइनिंग करते हैं फलाना फलाना सैंपल से मेटल निकालते हैं, तो इसमें वैसे क्वेश्चंस में आएगा कि यू नो व्हाट इज द प्योरिटी निकालने को बोला जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट दैट शुड बी प्योरिटी बाय मास, ठीक है. Now let me make you practice some questions based upon this now. So ये CO2 वाला एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो इसी को थोड़ा सा मैं और इलैबोरेट कर देता हूँ for you to be able to try take an attempt. So determine percentage of oxygen, okay, by mass in H2C2O4.2H2. क्या रहेगा आंसर? Right, so you used this simple interpretation that we had, ठीक है, चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर. This is the formula that you are supposed to use. परसेंटेज बाय मास निकालना है. अब मॉलिक्यूलर वेट आपको निकाला आपने इस कंपाउंड का H2C2O6 H2C2O4.2H2O का 126 आता है. Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन का कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इसमें? 96. आप यहाँ पे काउंट करोगे दैट ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, सो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग दैट 6 एटम आ रहे हैं ऑक्सीजन के. Yes, sir. Yes. 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ठीक है. आई होप आपको रीड करना आता है. So 6 into 16 would be the contribution in the molecular weight. Yes, sir. And divide that by molecular weight into 100%, you will get the answer. How much was the composition of oxygen? 76%. हाँ, ठीक है. If I say ask you in the same question, determine percentage by mass of water in H2C2O4.2H2, तो आपका क्या आंसर रहेगा? 28.5. So again you looked at the formula. 36 by 36 by 126 and 200%. Right, so contribution of water आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 into 18, that is the contribution of water in the molecular weight upon the molecular weight which is 126 into 100%. ये आपका आंसर हो जाएगा.
ठीक है, अच्छा थोड़े से और घुमा के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस में कैसा रहेगा, ये 3 चीजें हैं ना, 1, 2 and 3। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी द क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यू, उसमें मैं ये लेफ्ट हैंड साइड अननोन रख रहा हूँ एंड बाकी 2 चीजें नोन रख रहा हूँ और आपसे पूछते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। बट आई कुड modify question. Out of those 3, I can keep any 2 known and ask for the other as the unknown. ठीक है, जैसे for example, a certain compound of molecular weight 168 gram per mole is found to contain say 100 by 3% of nitrogen, ठीक है, एंड दिस इज बाय मास। वैसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से, एंड आई आस्क यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ atoms of nitrogen present in 1 molecule of the compound. चार नाइट्रोजन। बाकी लोग भी ट्राई करो, चैट पे आंसर दो। देखो, आई डोंट वांट यू टू लेट ओके get disturbed while you are giving the answer. हाँ, सो इसमें कैसे अप्रोच करना है आपको, राइट। सो कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, आई डोंट नो, ठीक है, एंड इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, से उसके एक्स एटम्स प्रेजेंट है ना, से एक्स atoms of nitrogen are present in 1 molecule of the compound, ठीक है। I don't know what other elements are there, but nitrogen क्या I'm assuming से X है। तो अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करोगे। The formula is this simple one, right? So you apply that formula over here. ये 100/3 लिखा हुआ है, now what would be the contribution of nitrogen? 14 times X. That's the contribution based upon the understanding that there are X atoms of nitrogen and molecular weight आपको दिया हुआ है 168। तो इससे अब आप सॉल्व करोगे तो आपका X का आंसर 4 आ जाएगा, and you will know that there are 4 atoms per molecule, right? समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं quickly. A certain compound contains 3.2% oxygen by mass. Determine the minimum molecular weight this compound can have. So what have you written after determine the? It looks like a 4. नीचे आ गया है. Determine the minimum molecular weight of this compound. Yes. Right, Anu? नहीं विराज, नहीं गौरव. सात्विक आपका सही है. नहीं गौरव. हाँ, आर्यवीर आपका सही है. सोहम मानव आपका भी सही है. प्रॉपर यूनिट्स के साथ में आंसर दिया करो, आदत बनाओ उसकी. Correct. So the correct answer is 500. ठीक है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना. So you have the compound and it contains oxygen. ठीक है. Say the compound is, I don't know, XYZ and oxygen और उसके से X atoms होंगे. Let this be the formula of the compound. Now percentage of oxygen आप कैसे बताओगे? It should be contribution of oxygen in the molecular weight upon molecular weight into 100%. है कि नहीं? Yes, sir. लिख सकता हूँ मैं? Yes. Yes, sir. इससे मेरा molecular weight आ जाएगा 500x. आप सॉल्व करोगे तो molecular weight आपका आ जाएगा 500x. Now what is the minimum molecular weight that you can have? 1 atom of oxygen. Minimum value of x that you can have is 1, no? Yes, sir. Yes, sir. तो at least होना चाहिए ना for it to be there. So यहाँ से then you can report the answer that molecular weight could be 500. The minimum molecular weight could be 500 AMU or 500 gram per mole. ये भी चलेगा. Yes, sir. ठीक है. सर हाँ बोलो. x मिनिमम इक्वल टू 1 कहाँ से आया? हमको पूछा क्वेश्चन में ये है ना कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है इस कंपाउंड का. ओके सर. वो क्वेश्चन में पूछा है मुझसे कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है. अब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बिकॉज आई कैन सी द फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग इज 500x. तो अब x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर उससे अच्छा 3.2% ऑफ x is 16 लिख देते. उससे 1 मिनट में आ जाता. नहीं, उसमें मैं मिनिमम वर्ड पे स्ट्रेस नहीं कर पाता. ठीक है, आई वांटेड टू स्ट्रेस ऑन दैट मिनिमम वर्ड एज क्लियरली एज पॉसिबल. ओके सर. ठीक है.
अच्छा, एक और क्विक क्वेश्चन. But sir, minimum can be 0.1 also, sir. If we don't take 0, then 0.1 could also be a minimum. Is that written? But x is a natural number. Chisel number. Okay, sir. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करो. Na2SO4.XH2O is found to lose around 56% of its weight upon prolonged heating. Determine X. So mass of sodium is 23. Atomic mass, sodium is 23, sulfur is 32, oxygen is 16, hydrogen is 1. हाँ, हृदय अनन्या आपका सही है. नहीं नतानिया. हाँ, अभिमन्यु आपका भी सही है. राइट मिहिर. अराउंड बोला ना मैंने, अराउंड 56%, तो थोड़ा सा राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको. हाँ, नहीं आर्यवीर आपका करेक्ट नहीं है. क्षितिज, अनव, आर्लिन, अश्विन, अंजलि, सौरादेव, गौरव, सात्विक, आप लोगों का करेक्ट है. नहीं हितेशी. या तो आपने टाइपिंग में एरर कर दिया. हाँ सर, वो एग्जैक्ट नहीं आता, थोड़ा सा इधर उधर. थोड़ा सा तो ठीक है, इधर उधर चलेगा. दैट्स ओके. So, as a hint, what is happening is heating से क्या हो जाएगा यहाँ पर? So water will get evaporated. Water will go away. Water Water is crystallization will go away. है ना? So that will be your hint. Upon heating, Yes. loss of weight is due to loss of water, right? So यहाँ पर percentage H2O is actually the percentage loss of weight, है ना? Percentage H2O by mass in this compound, that is 56% only, and percentage H2O based upon the formula आप लिख सकते हो जो पर फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है. It should be 10x, sorry not 10x, 18x upon 139 plus 18x. 2 into 23, ये सोडियम का हो गया, 32 सल्फर का हो गया, 4 into 16 ऑक्सीजन का हो गया, एंड 18x वाटर का हो गया into 100%. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो x comes very close to 10. And that's Sir, I got 9.82, so we can round it off 10. It's coming as 10.06. ठीक है, तो 994/99. ठीक है, मैंने बोला था कि अराउंड मैंने इसीलिए क्वेश्चन में यूज किया ताकि Sir, आसपास का आंसर आएगा तो आप उसको राउंड ऑफ करके इंटीजर में आंसर कर देना. sir, I had a doubt, sir. I haven't done it by this way. So what I did was that the mass of H2O, it will be equal to 56%. Like I just wrote 56 upon 100 is equal to 18x. 18x upon 100. मतलब 50. No. Wait. इवेपोरेटेड जो जितना मतलब Yes, लूज sir. हुआ वो मैंने किया 18x के जितना इक्वल होगा. हाँ मैंने वो किया. I've done मैंने भी वही 18x किया is था. equal to the mass which has been lost. तो वही तो अपन ने हाँ सर वो बहुत छोटा पड़ेगा. नहीं, but when you say that Sir, but same ही तो है. 18x is equal to क्या करा आपने 56% ऑफ मॉलिक्यूलर वेट लिया होगा ना. हाँ सर. Yes, sir. तो अपन कर रहे हैं. That is what we are doing. 18x is 56% of molecular weight. Yes. Okay. All right. So I think now we are in a position to understand. अगर मैं आपको किसी स्पीशीज का फॉर्मूला दूं, ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला you should be able to write down the percentage composition of its elements, right? इतना आपको अब समझ में आने लग गया, ठीक है. If I give you now, let's say molecular और percentage composition, ठीक है, देन क्या आप उसका फॉर्मूला वर्कआउट कर सकते हो? मैंने आपको अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया कंपाउंड के एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप निकालते हो. एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर मैं दूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, वो एक्सरसाइज कर सकते हो? Yes, sir. We can try. Let me actually give you a question only. So let's say a certain compound contains 50% carbon by mass and 50% oxygen by mass. Determine its molecular formula. तो क्या रहेगा? ठीक है, and the answer is not CO. A lot of students who are giving the answer is CO is incorrect because यहाँ पर 50% by mass बोला है, not by number. सर बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है. बहुत ज्यादा अजीब है. नहीं, ऐसा अजीब सा तो नहीं आएगा. हाँ सर, 4 कार्बन के एटम 3 ऑक्सीजन के एटम आ रहा है. C4O3. ऐसा कंपाउंड पहले कभी देखा नहीं है. ऐसा वही ऐसा कभी देखा नहीं है. सर उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा. Don't worry about whether it is a real compound or not. मैं वो नहीं डिबेट कर रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है. So the way
you are able to do it, and the way you are able to get the answer is, some of the students are able to get the answer saying that there are many answers that are coming. Sir, मैंने LCM निकाल के किया. Is that fine? हाँ. So you can say, do the question in many ways. One such way will be, let the formula be CX/OY. मुझे x और y की वैल्यू फिगर आउट करनी है. अब जो डेटा है x और y फिगर आउट करने के लिए, वो मेरे सामने क्या है? परसेंटेज का डेटा है. सो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? Contribution of carbon in the molecular weight 12x by 12x plus 16y upon the molecular weight. Molecular weight कितना हो जाएगा? 12x plus 16y, है ना? राइट. सर उसको मास के रेशियो में करना ज्यादा इजी होगा. मैं देखो थोड़ा इलैबोरेट तरीके से करके इसलिए बताता हूँ, बिकॉज आई वांट एवरीवन टू बी एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ सर. ठीक है. यू माइट फील लाइक अरे क्या सर लॉन्गर तरीका बता रहे हो. नहीं सर, ऐसा नहीं. इट्स ओके. स्टार्टिंग में इट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी देयर. धीरे धीरे अपन अपना लेवल बढ़ाएंगे. तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x अपॉन y का वैल्यू मिल जाएगा 4/3. आपको x नहीं मिलेगा, y नहीं मिलेगा, बट x अपॉन y का वैल्यू मिल जाएगा. सिमिलरली जब आप ऑक्सीजन का भी यूज करोगे डेटा विच इज 50% ओनली, तो आप बोलोगे 16y, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट into 100%. एंड इससे भी जब आप सॉल्व करोगे you will get the same equation that x upon y is 4/3. ठीक है. Sir. So you are not getting the value of x, you are not getting the value of y. The nature of the question, the nature of the data that is given to you is something which just gives you a relationship between x and y. But we can generalize this now, like C4 and O3, and there will be all infinite number of solutions to this. हाँ. So based on that, अब आप बोलोगे कि I am getting a lot of answers that my formula can be C3, C4 C4O3 C8O6 or it can be say C8O6 and so on and so forth. है ना. बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं आपके. Now, given that these answers are there, C8O6 या C12O9. So what you have come up with is called as empirical formula. Okay, so what I would summarize over here is यहाँ पर, thus let me put that as a statement over here. ठीक है, कैसा रहेगा? Given percentage composition of elements we can only determine possible molecular formula. Or possible, I should say, molecular formulae. And इनमें, ठीक है, amongst the formula that you get,
ठीक है, simplest among these is called empirical formula. Right, so यहाँ पर C4O3 would be that simplest answer of the molecular formula that you are getting for this compound containing carbon and oxygen. Although other answers are also possible. अब अगर आपको exactly determine करना है, then you would need at least one more data point. Then you would need to, Sir, the molecular weight. Vapor density or to exactly find the molecular formula. Another data point is needed. It could be molecular weight, right? और जैसे मैंने आपको बताया vapor density, right? Or some other piece of information. And that should be then used to come up with the answer. So for example, say ऊपर वाली example में, if I would have say told you that the molecular weight is 288 gram per mole, say the molecular weight of above compound is 288 gram per mole. तो फिर अब आप क्या बोलोगे, what would be the molecular formula? C12O18 O9. Right, so यहाँ पर C4O3, like that was the general molecular formula that we had got. And इसके बारे में बोला जा रहा है as molecular weight is equal to 288. So that means n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3. 288 अपॉन, यहाँ पे आप करोगे तो ये कितना आने वाला है? 96. 96. हाँ, C4O3 का, और you can say ऐसे 96 times n, या 96 कैसे लिख रहा हूँ मैं, like 4 into 12 plus 3 into 16 times n is equal to 288. तो यहाँ से आप n का वैल्यू निकाल लोगे. Implies the molecular formula is C12O9. ऐसा आप रिपोर्ट करोगे. तो ये कैसा था, ये एक क्वेश्चन था which was you can say a relatively easy question with some relatively easy data, and based upon that you got the answer. Now sometimes when you are going to solve the questions, okay, you might get certain questions, you might get certain, you know, data which is not that easy to solve, which is not that easy to work. ठीक है, तो उसमें एक टेबल मेथड यूज किया जाता है so as to come up with a calculation in a bit faster manner. ठीक है, I find that a bit hectic, but better है that आप वो एटलीस्ट एक बार तो वो टेबल मेथड देख लो. ठीक है, so let me explain that with an example. Say, in fact, let me pick that question from the booklet itself. ठीक है, मुझे एक मिनट दो.
ओके, तो ये क्वेश्चन है, मान लो आपके सामने। दैट एक कोई कंपाउंड है जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स दे दिया, and you can see that they have not specified it by mass, and that is going to be the case in most of the question. हाँ, ICSE बोर्ड के बच्चों ने ये टेबल मेथड सीखा होता है। Yes. बाकी बोर्ड्स के बच्चों ने नहीं सीखा होता है, so I will be going through this at least once so that the सर लेकिन ये पढ़ा हुआ है। I know so अब इसमें कैसे वर्क करा जाता है, ठीक है। वन longer approach that you will have is like you start with saying that the formula is CXHYOZ, ठीक है। आप इससे स्टार्ट करो, एंड देन ये जो डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनके बेसिस पर आप x, y एंड z का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो? सी, मैं एक तरीका क्विकली आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। CXHYOZ अगर लिखा हुआ है तो यू कैन से 12x प्लस y प्लस 16z। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट। सो ये हो जाएगा 83 इंटू 2। ये पहला इक्वेशन हो गया, राइट। देन परसेंटेज कार्बन कितना हो जाएगा? परसेंटेज कार्बन विल बी 12x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100%। सो 12x अपॉन कितना हो जाएगा? ये 83 into 2. 166 into 100%, and that is given to you as 57.82%. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। परसेंटेज हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन इन द मॉलिक्यूलर वेट विच इज y अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100%। सो y अपॉन 166 इंटू 100% is equal to 3.6%। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल आप सॉल्व करोगे तो आपका x, y और z आ जाएगा। Sir, what if we find the mole ratio of all three elements? हाँ, so of course, तो ये मैंने क्या करा, this is, it looks in the start easy कि अगर मैं ऐसे तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल बना लूं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली ये दिखने में आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है, बट जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको काफी टाइम, काफी मेहनत लगेगी, ठीक है, बिकॉज द डेटा इजंट दैट प्रिटी। However, if you spend enough time, you can very well solve this, ठीक है। अब एक और जो मेथड है, ठीक है, which is there to help you with the ease of calculation a bit, ठीक है। वो तरीका क्या रहता है? इट्स अ टेबल बेस्ड मेथड, ठीक है। वो टेबल बेस्ड मेथड कैसा रहेगा? सो मैं वो टेबल आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। सो दिस इज द टेबल बेस्ड मेथड। कैसे ये टेबल क्रिएट करनी होती है, उसमें एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट मी डू दिस थिंग। In fact, rather than this, let me elaborate the table in a step-by-step manner. So, इतना मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले कैसा टेबल क्रिएट करना है? आपको तीन कॉलम क्रिएट करना है। You have been given the element and their percentage, ठीक है, by mass,
that has been given to you. So इनके साथ में अब आप इनका एटॉमिक मास लिख दो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16. Now you compute a value called as relative number of moles. How do you do that? You divide their percentage composition by their atomic mass. Divide percentage composition by atomic weight and do this for each element. So you will get a number that will represent the relative number of moles of each element. Okay. Once you do that, then उसके बाद में you take the simplest ratio of the moles. ठीक है, next column आप fill करोगे, कैसे करोगे? What I would ask you to do is divide each value, ठीक है, जो भी स्टेबल में हमने वैल्यूज क्रिएट करी हैं उसमें जो लोएस्ट वैल्यू है उसको आप नोटिस करोगे एंड यू डिवाइड ईच ऑफ देम बाय द लोएस्ट वैल्यू. Divide each value by the lowest among them. तो ये 4.8 अपॉन 2.4 कितना आ गया? 2. 3.6 अपॉन 2.4 कितना आ गया? 1.5 एंड 2.4 अपॉन 2.4 आ गया 1. यहां तक का टेबल समझ में आ रहा है? यस सर. Yes. वैसे तो काफी सारे क्वेश्चन में यहीं पर होल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, इन मेनी ऑफ द टेबल्स यहीं पर होल नंबर आ जाएंगे, बट अगर लेट्स से यहाँ पर होल नंबर नहीं आता है, ठीक है, if this ratio doesn't come in form of whole numbers, convert them to whole numbers. ठीक है, कैसे यहाँ पे होल नंबर से कन्वर्ट करना पड़ेगा? यू कैन मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय 2. तो ये 2 का 4 हो जाएगा, 1.5 का 3 हो जाएगा एंड 1 का 2 हो जाएगा. सर, and this should now give you the empirical formula. ठीक है, this gives the empirical formula of the compound. क्या है empirical formula? C4H3O2. C4H3O2. Molecular formula क्या हो जाएगा? Times N. Times. Molecular formula of the compound will be some multiple of this only, right? Yes, sir. अब how do I compute this multiple? Vapor density is or given. molecular weight. So molecular weight will be 2 times the 83 vapor आता है. 2 times the vapor density. Correct. So to calculate N equal to N, use data of molecular weight or vapor density which is given to you. So यहाँ पर आप compute करोगे like 4 into 12 plus 3 into 1 plus 2 into 16 times N should be equal to the molecular weight. Yes, sir. Yes, sir. N is 2. Vapor density and इससे अब आप जब compute करोगे, right, इसका कितना दिया हुआ है आपको? 83. 83. So इससे N का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 2. 166. 2 आ जा रहा है.
You got the molecular formula. ठीक है, तो ये table based method है, which is a slightly more elaborate method that is taught to the students in junior classes. A more like conceptual method, I should say, is simply like you assume Cx, Hy, Oz and then form three equations, 3 variables and solve for it. ठीक है? हाँ, so यही मैंने क्वेश्चन वही आपको बोला था मिहिर, that जैसे ये जो कंपाउंड है जो आपने निकाला C8H6O4, इट्स नॉट रियली अ गैस, बट स्टिल उसके लिए वेपर डेंसिटी का डिस्कशन करा जा रहा है, इस क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया जा रहा है. So that's a flaw which is there in many questions that you will come across. ठीक है, अब you have one option, you either take this up in High Court and Supreme Court and sue the entire system, or you can make peace with it and आगे बढ़ो, next concept study करो. ठीक है, चलो ठीक है सर सीयू करते हैं. हाँ सर, सीयू करने का आइडिया उतना बुरा भी नहीं है सर. वही हाँ हाँ हाँ, तुम लोग शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लाइक बैकग्राउंड में. हाँ सर. हाँ सर. हम लोग अभी पेस में होते, क्लास से निकल रहे होते, तो हम हमारा नारा लेते हुए निकलते हैं, हमारी मांगे पूरी करो. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. हम लोग का केस लड़ेगा सर, वकील हमारा आ रहा है. चलो ठीक है सर, मर जाएंगे ये फैसला आते आते. all right. Any other question now? Sir, I have a doubt. Sir, आज का homework. Sir, in the table based formula, sir, instead of dividing by the lowest number, can we divide it by the HCF to directly get the whole numbers? यहाँ पर नहीं, relative simple. Yes, simple. So here, instead of dividing like by 2.4, we can divide it by the HCF. HCF is 1.2, so we can divide it directly with that to get direct whole numbers. हाँ, मतलब कर सकते हो आपको, बट वो HCF कैलकुलेट करके फिर करना पड़ेगा ना. That's okay. I am not too fussy Why are we about dividing percentage composition by atomic mass here? See, because given is the composition by mass, and what we are trying to do is get a composition by moles. Sir, so we are क्योंकि जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मूला में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना. ठीक है. So it's percentage composition by moles is the value that we are getting in the fourth column. That is what we are trying to achieve. हाँ. So ठीक है, हाँ मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ. Those who want to leave can leave. अभी के लिए इतना ही था ना. I'm just going to entertain some doubts only. no, I have a doubt. So I am. Hi sir, thank you. Yes, sir. Thank you, sir. sir. हाँ. Sir, so over here, while we are calculating the relative number of moles, we are pretending the total mass to be 100, and then carbon has a composition of 57.82 grams in that 100, which we are dividing by 2. Okay. So So in this simple ratio of moles, sir, here we got 1.5. So we multiplied by 2 and we got a whole number. But if it had been some other number like 1.63, sir, so how we would convert it into whole number? ऐसा आना नहीं चाहिए, देखो ठीक है, बिकॉज जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा उसमें इंटीजर्स ही रहेंगे. जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में रहेंगे. So you shouldn't get some random values over here. ठीक है, most of the cases में यहीं पर ही आपके whole numbers आ जाते हैं. But in case अगर नहीं भी आए इस वाले कॉलम में whole number, तो by multiplying one simple factor to all of these, you should get whole number. Okay.
So cases like if this division comes to something like 1.33 or 1.66, that won't come anymore. वो आना ही नहीं चाहिए, और अगर आ भी रहा होगा ना तो वो सब में आएगा, मतलब इस वाली वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में, इस वाली वैल्यू में, तीनों में आएगा. तो दैट यू देन मल्टीप्लाई बाय अ number and all of them will get converted into a whole number. Okay, sir. Sir, sorry to interrupt, but I meant to ask, in tomorrow's doubt class, will you be taking doubts from Atomic, the extra doubts or something? In Atomic, हाँ ले लेंगे ना. Okay, thank you, sir. टाइम बचेगा तो ले लेंगे. Yes, sir. Sir, could you scroll up? I had a doubt on what you had explained about. हाँ बोलो. Could you scroll up, sir? यहाँ पे? थोड़ा और, sir. So here, what does n mean? Like it's a number which is so basically, okay, इसके पहले आप यहाँ पे नोटिस करो, जब हम लोग composition निकालने की कोशिश कर रहे थे, we are getting that x by y का ratio 4/3 है. Yes, sir. So the formula can be C4O3. Yes, sir. Or it can be any multiple of it, because the ratio of carbon to oxygen remains the same, 4/3. Yes, sir. So that is what we are saying, that based on that data, what we have been able to achieve is this level of information, that the formula will be some multiple of C4O3. Okay, sir. So n is just some multiple, some integral multiple. Okay, sir. Thank you. ठीक है, वेरिएबल की कमी रहती है हमारे पास में, like n was orbit number, principal quantum number and everything. So Yes, sir. chapter to chapter that will change. ठीक है. Okay, sir. Thank you, sir. चलो, all right. So for calculating the mass of water in a compound, we don't consider other hydrogen and oxygen atoms. कहाँ पर? Like we had this question in H2C2O4.2H2O वाले में, you asked कि we have to determine the mass of water, percentage by mass of water. हाँ. Yes, sir, this question. अब इसमें water तो यहीं पे दिख रहा है ना as an entity. Yes, sir. यहाँ पर नहीं है water. So we don't consider that H2O4. नहीं. That is a, so अगर if I look at this compound, ठीक है, it is this species with some water attached to it. Yes, sir. Water crystallization. वाले, हाँ, water वाले component का मुझे आंसर. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. ठीक है. Can you tell why the table method works? I didn't get exactly the relative dense. टेबल मेथड में आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है. डोंट ट्राई टू थिंक कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज क्यों करने के पीछे का रीजन इज जस्ट टू बी मोर सिस्टमैटिक एंड स्टेप बाय स्टेप, ताकि इजीली समझ में आए. ठीक है, तो स्टेप्स कैसे फॉलो करे जा रहे हैं. So I got how you follow the steps. I wanted to know what's like the significance of relative number of moles. And so that is what I'm saying, that the way in which the table has been designed is, the overall crux is that from percentage mass, what we want to get is the composition, or you can say the relative number of atoms that each of these element will have in the compound. ठीक है. सो अभी टेबल को क्रिएट करने का तरीका कैसा हो गया, मान लो द कंपाउंड वाज 100 grams. ठीक है, इफ कंपाउंड वाज 100 grams, then this will be the mass of each element present in it in grams. Then from their mass we get their moles by dividing them by their atomic mass. ठीक है, so you get the relative number of moles of each element, which will give you the idea of the relative number of atoms of these elements in the molecular formula. ठीक है, the relative number of moles or relative number of atoms is the same thing only. Now all you need to do is take it in a simplest form and in a simplest whole number form. तो वो mathematically हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, because our convention of defining formulas is to define them in simplest whole number forms.
Yes, sir. Got it. Thank you, sir. ठीक है सर इसको 2.4 से डिवाइड करने के बजाय हम 1.2 से भी कर सकते थे ना? हाँ हाँ सेम ही चीज है। Sir, I had a doubt. Hmm. Sir, in this question, can't we just say that 57.82% of this compound is carbon, right? The mass. Mm-hmm. So we can say 57.82% of 166 is the total mass of carbon. यही तो करा था मैंने, मेथड 1 वही तो बोला। But सर ये ज्यादा शॉर्ट होगा ना फिर, मतलब ये ऐसे अलग अलग करने से अच्छा we get 96 as the mass of carbon and we just divide by 12 and we get 8. मतलब सर इसमें steps कम है सेकंड टेबल बेस्ड से। हाँ हाँ ऑफ कोर्स टेबल बेस्ड मेथड इज स्टेप्स ज्यादा है उसमें, बट इट इज समथिंग व्हिच इज देयर। तो सर सॉल्विंग में कौन सा प्रेफर करना चाहिए? इसमें मेरे को ये शॉर्ट लगा। आपको इतना चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? Okay. There is hardly going to be a question in exam which will be directly based on this, you know, do the calculations in this manner, ठीक है? Honestly, आप आगे ये टेबल यूज करोगे ही नहीं, ठीक है? चैप्टर यू विल रेयरली कम अक्रॉस अ क्वेश्चन। अभी स्टार्टिंग में होमवर्क में मैं थोड़ा बहुत करवाऊंगा आपको, बट आगे इतना कुछ जरूरत पड़ेगा नहीं। So I can use this first method, right? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, sir. Sir, I'm Siddharth. हाँ Sir, I had sent you that latex link. So that day I had not completed it fully. So you can go through it now. It is completely now like completed it. The formula. दोबारा भेज दो मुझे एक बार, मैं Yes. देख। Okay. ठीक है चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस। मैं थोड़ा होमवर्क शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप में, गो ट्राई करना एंड देन लेट्स डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास।